We have been studying the relationship between a husband and a wife, that it should reflect the relationship between Christ and the church. हम ये सीखते आ रहे हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता मसीह और कलीसिया के रिश्ते को दर्शाना चाहिए. Some husbands may complain that my wife does not submit to me. कुछ पति शायद ये शिकायत करेंगे कि उनकी पत्नी उनके अधीन नहीं होती. But Paul says that if a husband loved his wife as Christ loved the church, then it will be very difficult for his wife not to submit to him. लेकिन पौलुस ये कहेगा कि अगर पति अपने पत्नी से वैसे ही प्रेम करे जैसे मसीह कलीसिया से करता है, तो उस पत्नी के लिए अपने पति के अधीन ना रहना बहुत मुश्किल होगा. So the credit or blame for the wife's behavior to a large extent can be ascribed to the husband. तो पत्नी के व्यवहार का उत्तरदायित्व काफी हद तक पति के ऊपर होता है. Why would Paul say this? और पौलुस ऐसा क्यों कहेगा? So let's read Ephesians chapter 5 and verse 33. तो आए हम एफेसियों का 5वां अध्याय 33वें आयत को पढ़ें. In any case, each one of you also must love his own wife as himself, so that the wife may fear the husband. बहरहाल तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, ताकि पत्नी भी अपने पति का भय माने. Now most translations begin verse 33 with the word nevertheless or however. अधिकतर आपका जो हिंदी अनुवाद है वो भी 23वें आयत की शुरुआत पर शब्द से करता होगा. But I think the better translation of the Greek word is in any case. लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे जो यूनानी शब्द है उसका बेहतर अनुवाद होगा बहरहाल, ना कि पर. बहरहाल, in any way, in any case. Why does Paul use this word? पौलुस इस शब्द का प्रयोग क्यों करता है? So let's read the previous two verses. इसके पिछले के दो आयतों को एक बार पढ़े तो हमें समझ आएगा कि वो इन शब्दों का इस शब्द का प्रयोग क्यों करता है. Verse 31 and verse 32. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं. Paul was saying that from the very beginning God had purpose that marriage should reflect the relationship between Christ and the church. पौलुस कह रहा है कि उत्पत्ति से परमेश्वर का यह उद्देश्य रहा है कि विवाह का संबंध मसीह और कलीसिया के रिश्ते को दर्शाए. It was a mystery which has now been revealed to the apostles and prophets like Paul. और अब ये जो भेद था जिसका प्रकाशन अब पौलुस जैसे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिया गया है. Now probably it will take more time for the church to fully understand this mystery. तो शायद लेकिन इस भेद को समझने के लिए शायद कलीसिया को और समय लग सकता है. But in the meanwhile, Christian husbands and wives can begin to practically reveal that mystery through their marriage. लेकिन इस दौरान मसीह पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन के द्वारा प्रायोगिक रीति से इस भेद को प्रकाशित कर सकते हैं. That is why Paul begins the verse by using the word in any case. और इसीलिए पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल यहां पर करता है बहरहाल. तुमने इस भेद को पूरा नहीं समझा है, लेकिन
इसको जी कर देखो. You might have not understood it fully, but in any case, let's put it to practice. In any case, you start living out what you've learned so far. बहरहाल आपने जिन बातों को अभी तक सीखा है, उस तरह आप जीना शुरू करो. So my first point today is love your wife as yourself. तो आज का जो पहला जो बिंदु है वो है अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखो. That's the title of the sermon also. आज के प्रचार का शीर्षक भी वही है. That's the most important thing that husbands have learned so far about marriage, that they should love their wives as themselves. अभी तक पतियों ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात को सीखा है वो यही है कि वो अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखें. Because that is how Christ loved the church. क्योंकि मसीह ने भी कलीसिया से ऐसे ही प्रेम किया है. He loved the church as his own body. उसने कलीसिया से अपने देह के समान प्रेम रखा है. And that is why Paul begins the verse by saying, in any case, each one of you also must love his own wife as himself. पौलुस इसीलिए आयत की शुरुआत ये बोलकर करता है कि तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे. This is a reminder of what Paul has been teaching from verse 28. ये हमें उन बातों का स्मरण दिलाता है जिसको पौलुस 28वें आयत से सिखाता आ रहा है. Let us read it. आइए हम उसको पढ़े. Verse 28. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है. God has so joined together the husband and wife in marriage that they become one. परमेश्वर ने पति और पत्नी को विवाह के संबंध में इस तरह जोड़ा है कि वो एक हो जाते हैं. The husband is the head and the wife is his body. पति जो है सिर और पत्नी उसका देह है. Therefore, if a husband loves his wife, he loves himself. और इसीलिए अगर पति अपने पत्नी से प्रेम करता है तो वो अपने आप से प्रेम करता है. On the other hand, a husband who hates his wife hates himself. और दूसरे हाथ पर अगर कोई पति अपने पत्नी से बैर करता है तो वो अपने आप से बैर करता है. That is what Paul concluded in the very first part of verse 29. और यही निष्कर्ष पौलुस ने निकाला 29वें आयत के पहले भाग में. Read that. उसको एक बार हम पढ़े. He says, for no one ever hated his own flesh. वो कहता है किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा. Does any person hate his own body? क्या कोई भी व्यक्ति अपने ही शरीर से बैर रखता है? How then can a husband hate his own wife? तो एक पति अपने पत्नी से कैसे बैर रख सकता है? पौलुस पूछ रहा है. That's what Paul is asking. But some husbands do not realize this and end up harming themselves. लेकिन कुछ पति ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते नहीं है और वो अपने आप को हानि पहुंचाते हैं. There are husbands who are inconsiderate towards their wives' needs or they dishonor them. ऐसे पति हैं जो अपने पत्नियों के जरूरतों को समझते नहीं हैं, उनके प्रति बेपरवाह रहते हैं और उनका अनादर करते हैं. The apostle Peter says that a husband who behaves like this will hinder his own prayers. प्रेरित पत्रस ऐसे व्यवहार करने वाले पतियों से कहता है कि वो अपने प्रार्थनाओं के लिए रुकावट का कारण बन जाएंगे. God will not answer their prayers. परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा. By hating his wife, he has hated himself. अपने पत्नी से बैर करके उसने अपने आप से बैर कर लिया है. So what should a husband do? तो एक पति को क्या करना चाहिए? Paul says in the second part of verse 29,
that every person nourishes and cherishes his own flesh. पौलुस 29वें अध्याय के दूसरे भाग में कहता है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का पालन पोषण करता है. A husband also should do the same. एक पति को भी ऐसा ही करना चाहिए, because that is what Christ did for the church. क्योंकि मसीह ने भी कलीसिया के लिए ऐसा ही किया है. He nourished the church with his word so that the church becomes more and more like him. उसने कलीसिया को अपने वचन से पाला है ताकि कलीसिया उसकी तरह बन जाए. And he cherished the vulnerable church with his word so that he may protect it from all kinds of false teachings. और आघात योग्य कलीसिया का पोषण किया है उसने अपने वचन के द्वारा, ताकि उसको हर प्रकार के झूठे उपदेश से बचाकर रखा जाए. In the same way, every husband must nourish his wife. इसी तरह हर पति अपने पत्नी का पालन करे. Which means help her to grow in every area of her life. जिसका मतलब है कि जीवन के हर क्षेत्र में उसको बढ़ाने का प्रयास करे, उसको ऊपर उठाने का प्रयास करे. Especially in her spiritual life, by speaking the word to her. खासकर उसके आत्मिक जीवन को लेकर वचन की सेवकाई के द्वारा. And every husband must also cherish his wife, which means protect her from every danger. और हर पति अपने पत्नी का पोषण करे, जिसका मतलब है कि उसको हर खतरे से बचाकर रखे. He must especially protect her from spiritual risk like false teachings. और खास करके उसको आत्मिक खतरों से बचाकर रखे, जैसा कि झूठी शिक्षाएं. And he must do this by speaking the word to her. और वो ये करता कैसे? वचन की सेवकाई के द्वारा. तो पतियों का खास दायित्व बनता है कि घरों में अपने पत्नियों से वचन का प्रचार करे, वचन सिखाए उनको. So husbands have a special duty towards their wife at home to preach and teach the word of God. Are we husbands loving our wives like this? क्या हमारे यहां पे जितने पति है, क्या वो अपने पत्नियों से ऐसा ही प्रेम रखते हैं? Because a husband's behavior then may have a direct bearing on the wife's response. क्योंकि पति का व्यवहार पत्नी के प्रतिक्रिया पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है. Homes where husbands love their wives as themselves, it is highly likely that their wives will fearfully submit to them. जिन घरों में पति अपने पत्नियों से अपने समान प्रेम रखते हैं, वहां पर यह अत्यधिक संभव है कि पत्नियां भी भय सहित अपने पतियों के अधीन होते हैं. And if wives are not fearfully submitting to their husbands, we need to check how husbands are behaving towards their wives. और अगर पत्नियां भय सहित अपने पतियों के अधीन नहीं हो रही है, वहां हमें परखने की जरूरत है कि पति अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है. Why do we say this? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? That brings us to the second point. ये हमें आज के दूसरे विषय पर लेकर आता है, दूसरे बिंदु पर लेकर आता है. And the second point is that so that the wife may fear the husband. ताकि पत्नी अपने पति का भय माने. ये दूसरा बिंदु है, ताकि पत्नी अपने पति का भय माने. Now remember that Paul has been speaking to the husbands from verse 25. अब ध्यान दें, याद रखें कि 25वें आयत से पौलुस पतियों को ही संबोधित करता आ रहा है, पतियों से ही बात करता आ रहा है. And in this concluding verse today, Paul tells the husbands what might happen if they love their wives as themselves. और पौलुस आज के इस समापन आयत में पौलुस पतियों से कह रहा है कि अगर वो अपने पत्नियों से अपने समान प्रेम रखते हैं तो क्या हो सकता है.
The second part of the verse shows the probable outcome of their love. आयत का दूसरा भाग उनके प्रेम के संभावित परिणाम को प्रस्तुत करता है. The verse reads like this in Greek. यूनानी भाषा में इस आयत को इस तरह लिखा गया है. In any case, each one of you also must love his own wife as himself, so that the wife may fear the husband. लिखा है, बहरहाल तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, ताकि पत्नी भी अपने पति का भय माने. If a husband loves his wife as himself, she may fear him. अगर पति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखता है, तो शायद पत्नी उसका भय माने. Now, most English translations use the word respect for the wife's response instead of fear. अब ज्यादातर जो अंग्रेजी अनुवाद है वो पत्नी की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए आदर शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि भय. But the Greek word is phobeo, from which we get the English word phobia or fear. लेकिन वहां पर जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है phobeo, जिसका अर्थ है भय, फोबिया. Immediately modern minds will ask, should the wife then fear her husband? तो तुरंत आधुनिक सोच रखने वाले मुझसे शायद ये पूछेंगे, तो क्या पत्नी को अपने पति का भय मानना चाहिए? क्या भय रखने की जरूरत है? शुड वुमन बी हस्बैंड फोबिक? तो क्या स्त्रियों को अपने पतियों का फोबिया होना चाहिए, डर होना चाहिए, भय होना चाहिए? That is because the word phobia generally has a negative connotation today. वो इसलिए है क्योंकि साधारण रीति से आजकल इस शब्द को एक नकारात्मक अर्थ दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इस्लामोफोबिया और होमोफोबिया, इस्लाम का फोबिया या समलैंगिक लोगों का फोबिया, यानी इस्लाम से डर या समलैंगिक लोगों का डर. But in the Bible, this word is used with a positive connotation also. लेकिन बाइबल के अंदर इस शब्द को एक सकारात्मक अर्थ भी दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, the same word is used for fear of God or fear of the Lord. क्योंकि इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के भय के लिए, प्रभु के भय के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है. Those who are not acquainted with the Bible will then ask, why should we even fear God? जो लोग बाइबल से परिचित नहीं है वो शायद ये सवाल करेंगे कि हमें परमेश्वर से भय मानने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है. We must fear God because ultimately our life and our destiny is in His hands. हमें परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है क्योंकि हमारा जीवन और हमारा मुकद्दर उसके हाथों में है. And therefore we must fear all those who come to us in His name. और इसलिए हमें उन सब लोगों का भय मानने की जरूरत है जो उसके नाम से हमारे पास आते हैं. And that is what Paul is arguing in this context. और इस संदर्भ में पौलुस इसी तर्क को प्रस्तुत हमारे सामने कर रहा है. See, this whole passage is about husband and wife relationship, and it began in verse 21.
पति पत्नी के रिश्ते पर यह जो पूरा विषय है उसकी शुरुआत 21वीं आयत से हुई थी। लेट अस रीड वर्स 21। आइए हम 21वीं आयत को पढ़ें। Being subjected to one another in the fear of Christ, लिखा है वहां पर, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन किए गए हो। एक दूसरे के अधीन रहो नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है वहां पर, बल्कि एक दूसरे के अधीन किए गए हो ऐसा लिखा है। हिंदी अनुवाद में बदलाव की जरूरत है। इन वर्स 21 ऑल्सो देयर पॉल यूजेस द वर्ड फियर। यहां पर भी वही शब्द, जो लगभग वही शब्द भय का इस्तेमाल हुआ है। पॉल वाज सेइंग दैट Christians are subjected to one another in the fear of Christ. पौलुस कहता है कि मसीह के भय से मसीही एक दूसरे के अधीन होते हैं। Wives are subjected to husbands. पत्नियां पतियों के अधीन होती हैं। Children are subjected to their parents. बालक माता पिता के अधीन होते हैं। Slaves are subjected to their masters. दास अपने स्वामी के अधीन होते हैं। But ultimately, Christians remain subject to them out of fear of Christ. लेकिन आखिर में मसीही लोग इनके अधीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मसीह यीशु का भय होता है। Because Christ ruling authority has been given to these people, to husbands, parents and masters. क्योंकि मसीह यीशु का जो शासन करने का अधिकार है वो इन लोगों को सौंपा गया है। यानी पतियों को, माता पिताओं को, स्वामियों को यीशु मसीह का अधिकार मिला है। So when Paul says in our verse that wives must fear their husbands, तो हमारे आयत में पौलुस जब कहता है कि पत्नियों को अपने पतियों का भय मानना चाहिए, they must fear their husbands because their husbands have received authority from the ruling Christ. उनको अपने पतियों का भय इसलिए मानना चाहिए क्योंकि उनके पतियों ने शासन करने वाले मसीह का अधिकार पाया है। Why do Christians submit to or obey authorities? मसीही लोग अधिकारियों के अधीन क्यों होते हैं अथवा उनके आज्ञाओं का पालन क्यों करते हैं? Wives submit to their husbands. पत्नियां अपने पति के अधीन होते हैं। Children obey their parents. बालक माता पिता के अधीन होते हैं। Employees obey their employers. कर्मचारी अपने मालिकों के अधीन होते हैं। Citizens submit to governing authorities. नागरिक शासन करने वाले अधिकारियों के अधीन होते हैं। Because all these authorities represent the ruling Christ. क्योंकि ये सब अधिकारी शासन करने वाले मसीह यीशु के प्रतिनिधि हैं इस पृथ्वी पर। They are implementing Christ's rule here on earth. वो इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के शासन को लागू करते हैं। So when we do not submit to them or disobey them, we are actually rebelling against the rule of Jesus Christ. तो जब हम ऐसे लोगों के अधीन नहीं होते हैं अथवा उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, हम मसीह यीशु के शासन का विरोध करते हैं। At the same time, when these authorities give us commands that are against Christ's commands, लेकिन इसी समय अगर ये अधिकारी ऐसे आज्ञाओं को दे जो मसीह यीशु के आज्ञाओं के विरोध में है, then we do not submit to them or obey them. तो हम उनके अधीन नहीं होते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। Because our ultimate allegiance is to Christ, the ruler of this universe. क्योंकि आखिर में तो हमारी वफादारी मसीह यीशु से है।
जो इस सारे संसार का शासक है, इस सारे दुनिया पर राज करने वाला यीशु मसीह है. There are a lot of Christian wives who are not able to experience Christ's rule in their marriage because their husbands are not Christians. अब ऐसे बहुत मसीही पत्नियां हैं जो अपने विवाह में मसीह के शासन का अनुभव ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके पति मसीह नहीं है. But to such wives also, the apostle Peter says that they should have a fearful behavior towards their unbelieving husbands. लेकिन ऐसे पत्नियों से भी प्रेरित पत्रस कहता है कि उनको अपने अविश्वासी पतियों के प्रति भय का व्यवहार रखना चाहिए. Because by their behavior, they will show their unbelieving husbands that they also, this is how you need to fear Christ and obey his word. क्योंकि ऐसा व्यवहार के द्वारा वे अपने पतियों से ये कहेंगे कि उनको भी ऐसे ही मसीह का भय मानना चाहिए और उसके वचन का पालन करना चाहिए. Let's read 1 Peter chapter 3 and verse 1 and 2. आइए हम पहले पत्रस का 3रा अध्याय और पहले 2 आयतों को पढ़ें. पहला पत्रस 3रा अध्याय और पहले 2 आयत. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful, that is a fearful, that's the word fearful, when they see your fearful and pure conduct. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन अथवा सुसमाचार को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए. God uses our behavior to draw people towards the gospel. परमेश्वर हमारे व्यवहार के द्वारा भी लोगों को सुसमाचार की ओर खींचता है. But for wives who have loving Christian husbands, they will find it much easier to fear their husbands. लेकिन जिन पत्नियों ने मसीह पतियों को पाया है जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए पति का भय मानना काफी आसान हो जाता है. Because their husbands are ruling over them with Christ's love. क्योंकि उनके पति उन पर मसीह के प्रेम के द्वारा शासन करते हैं. Just as Christ loves the church as his own body, Christian husbands love their wives as their own bodies. जैसे मसीह यीशु अपने देह के समान अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, वैसे ही मसीही पति अपने पत्नियों से अपने देह के समान प्रेम करते हैं. And that kind of love helps Christian wives to see Christ's love in their husband's love. और ऐसा प्रेम करने के कारण मसीह पत्नियां अपने पतियों के प्रेम के द्वारा मसीह के प्रेम को देख पाते हैं. And that is why it is much easier for them to fear their husbands. और इसलिए उनको पतियों का भय मानना और आसान हो जाता है. That is why Paul tells the husbands in today's verse that if they love their own wives as themselves, then their wives may fear them. इसीलिए पौलुस आज के आयत में पतियों से कहता है, अगर वो अपने पत्नियों से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हो सकता है कि उनकी पत्नियां उनका भय मानेंगी. How do Christian wives show their fear to their Christian husbands? मसीह पत्नियां अपने पतियों के प्रति भय को कैसे व्यक्त करते हैं? By submitting to them, उनके अधीन होकर.
That is why Paul had said in verse 21, being subjected to one another in the fear of Christ. पौलुस इसलिए किस आयत में कहता है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन किए गए हो. Fear leads to submission. भय के कारण आप अधीन होते हो. If Christian wives do not submit to their husbands despite their love towards them, then they are not only rebelling against their husband's love, rather they are rebelling against Christ's love. अगर मसीह पत्नियां अपने पतियों के प्रेम के बावजूद उनके अधीन नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ अपने पति के प्रेम का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि मसीह के प्रेम का विरोध करते हैं. And if they do that, they will have to one day face Christ's judgment. और अगर ऐसा वो करते हैं, तो उनको एक दिन मसीह के न्याय का सामना करना पड़ेगा. That is why Christian wives fearfully submit to their husband's love. इसलिए मसीह पत्नियां भय के साथ अपने पतियों के प्रेम के अधीन होते हैं. For example, let us read Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. We had read this, we'll read it again. हम उदाहरण के लिए इब्रानियों का 10वां अध्याय और उसका 26 और 27वां आयत पढ़ेंगे. इब्रानियों का 10वां अध्याय 26 और 27. ये हमने पहले पढ़ा आज के आराधना सभा में, लेकिन फिर से एक और बार पढ़ेंगे. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful, notice the word there, that's a related word, fear, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. क्योंकि सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं. हां, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा. After having believed the truth of the gospel, if Christians do not live according to the truth of the gospel, rather they sin willfully, then there is no sacrifice that can cover their sins. सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करने के बाद अगर मसीह लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि जानबूझकर पाप करते रहते हैं, तो फिर उनके पापों को छुपाने के लिए कोई बलिदान बाकी बच नहीं गया है. For such a person there is no hope, but only a terrifying or fearful expectation of God's judgment. ऐसे एक व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं, बल्कि परमेश्वर के दंड का एक भयानक बाट जोना ही बाकी बच जाता है. Because such a person has trampled underfoot the Son of God, has regarded as unclean Jesus' blood by which he was sanctified, and insults the Holy Spirit who applied God's grace to his life. क्योंकि ये व्यक्ति जो ऐसा करता है, वो परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदता है. यीशु मसीह का वो लहू जिससे वो पवित्र ठहरा था, उसे अपवित्र जानता है, और पवित्र आत्मा का अपमान करता है जिसने उसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आया. 29वां आयत पढ़े, रीड वर्स 29. How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has spurned the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified and has outraged the Spirit of grace? तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था,
अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया. These verses are not saying that a true believer will lose his salvation. ये आयत ये नहीं कह रहे कि एक सच्चा विश्वासी अपना उद्धार खोएगा. Rather, these verses have been written in order to put fear into the life of a believer. इन आयतों को इसलिए लिखा गया है ताकि परमेश्वर अपने लोगों के हृदय में भय को डाले. उसीलिए 26वें और 31वें आयत में वो भय शब्द का इस्तेमाल करता है. That is why he uses the word fear in verses 26 and 31, so that he will continue to submit to the expectations of the gospel, ताकि सुसमाचार को मानने वाले लोग सुसमाचार की अपेक्षाओं पर चलते रहे, भय माने उसका. In this passage, Paul has taught that it is Christ's love which comes to the wives through the rule of their husbands. इस खंड में पौलुस ने हमें यह सिखाया है कि पतियों के शासन के द्वारा पत्नियां मसीह के प्रेम का अनुभव करती हैं. And therefore every Christian must fearfully submit, every Christian wife must fearfully submit to her loving husband. और इसलिए हर मसीह पत्नी भय के साथ अपने प्रेमी पति के अधीन हो. Because if they do not submit to their loving husbands, they will one day face the judgment of Christ Jesus. क्योंकि अगर वो अपने प्रेमी पति के अधीन नहीं होती तो वो एक दिन मसीह यीशु के न्याय का सामना करेगी. But in our verse, Paul emphasizes the role of the husband. लेकिन हमारे आयत में पौलुस पति के भूमिका पर जोर डालता है. Only if the husband loves like Christ, अगर पति मसीह के तरह प्रेम करता है, loving his wife as himself, अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखता है, the wife will be able to see Christ's love and fearfully submit to him. तब उसकी पत्नी मसीह के प्रेम को देख पाएगी और उसके अधीन हो पाएगी. That is the pattern we see in the relationship between Christ and the church. इसी आदर्श को हम पाते हैं मसीह और कलीसिया के रिश्ते में भी. The church was earlier rebellious to Christ. कलीसिया पहले मसीह यीशु के विरोध में था. Only when their spiritual eyes were opened, they understood that Christ died on the cross for their sins. जब उनकी आत्मिक आंखें खुली, तब उन्होंने समझा कि मसीह उनके पापों के लिए क्रूस पर मरा है. They understood that God has so loved them that He provided His own Son as a sacrifice for their sins. उन्होंने ये समझा कि परमेश्वर ने उनसे इतना प्रेम किया है कि उसने उनके पापों के लिए अपने ही पुत्र यीशु मसीह का बलिदान दे दिया है. And if they still rebel against Christ's love, they would be actually rebelling against God's love for them. और फिर भी अगर वे मसीह के प्रेम का विरोध करते हैं तो वे परमेश्वर के प्रेम का विरोध करते हैं. That is why the church fearfully submits to Christ Jesus. इसलिए कलीसिया मसीह यीशु का भय मानकर उसके अधीन होता है. Husbands, if your wives do not submit to you, पतियों से बात करना चाहता हूं, अगर आपकी पत्नियां आपके अधीन नहीं रहती, continue to love them the way we have learned in these verses. तो उनसे वैसे ही आप प्रेम करते जाएं जैसे हमने इन आयतों में सीखा है. Do not hate them. उनसे बैर ना करें. Do not blame them. उन पर दोष नहीं लगाएं.
Be kind and compassionate towards them. उनके प्रति कृपालु और करुणामय रहो. Help them to grow in every area of their life. जीवन के हर क्षेत्र में उनको बढ़ाने का प्रयास करो. Especially in their spiritual lives. खासकर उनके आत्मिक जीवनों में. Preach the gospel to them. उनको सुसमाचार सुनाते रहो. Teach them from the scriptures. पवित्र शास्त्र में से उनको सिखाते रहो. Protect them from every danger. हर खतरे से उनको बचाओ. Especially all kinds of spiritual dangers like false teachings. खासकर आत्मिक खतरों से जैसे कि झूठे उपदेश. Show physical affection to them. उनको अपना शारीरिक प्रेम दो. And God will use your Christ-like love to draw them to the gospel. और परमेश्वर आपके मसीह समान प्रेम का इस्तेमाल करेगा उनको सुसमाचार की ओर खींचने के लिए. They will know Christ's love through your love. आपके प्रेम के द्वारा वो मसीह के प्रेम को जान पाएंगे. And then they will begin to fearfully submit to you. और उसके बाद वो भय के साथ आपके अधीन होंगे.